Hello everyone. Today one advanced ruling was pronounced in case of flour mill, especially where the flour millers were providing crushing services to the state government in the form of conversion of wheat into atta, and that atta was further supplied to the common public through PDS. तो ये जो क्रशिंग चार्जेस मिलर्स रिसीव कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट से, इसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी को लेके हमने एडवांस रूलिंग फाइल की थी जो आज प्रोनाउंस हुई है. लेट मी से यू बिफोर गोइंग इनटू डिटेल, दिस एडवांस रूलिंग सेज that the crushing charges received by the flour millers will be exempt. भाई exempt होगा तो अभी तक भी आप जो taxable सोच रहे थे, लेकिन as per this advance ruling ये exempt होगा. Now let us go in detail. First of all, let me say the process in a very short, in very brief. Let me discuss the process. What happens? Millers receive the wheat from the state government. They crush the wheat and convert it into atta. During conversion into atta, they use some vitamins, which is known as fortification. भाई वो लोग कुछ विटामिन वगैरह ऐड करते हैं, फिर बाद में पैकिंग करके इसको स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं जो पीडीएस के थ्रू कॉमन पब्लिक को सप्लाई होती है. इन दिस होल प्रोसेस दे रिसीव सम कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड ऑल्सो सम नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन in the form of the byproduct that is being retained by the millers. Byproduct, I mean to say bran and the refraction, and also the gunny bags that is being received by the miller, because whenever they receive the wheat they receive in gunny bags, so those gunny bags is also retained by the miller, and obviously that is also the part of the consideration which is specifically mentioned in the contract also. So this is the whole process. Now for this, whether the taxability will be under exempt or 5%, that depends on the material component, percentage of material component, whether it is 25% or more, or 25 or less than 25%. The rate notification says if value of material is less than 25% in the whole composite value of supply, then it will be exempted. But अगर material का component 25% से ज़्यादा होगा, then it will be taxable at the rate of 5%. Now the biggest challenge was how to calculate this percentage, 25%, whether it is more than 25% or less than 25%. The biggest challenge was to calculate the percentage of material in the whole value of supply. पूरी value of supply में अपने material का component कैसे निकालेंगे? There are two possibilities. One is कि we calculate the percentage of material on the basis of cost sheet given by the government in circular. Okay, and the second possibility is on the basis of our actual books of account. Now, if we go as per actual books of account, that will be a big challenge because in actual numbers will keep on changing. Whenever we'll purchase the packing material, obviously on different dates, the price might be different. And also whenever we'll be selling bran under refraction, in that case also, there is a possibility that prices are fluctuating. So this was a big challenge. We mentioned these both possibilities in our application and then asked कि हाउ टू कैलकुलेट दिस 25%, क्योंकि अगर हम लोग एक्चुअल के हिसाब से जाएंगे तो प्रैक्टिकली ये बहुत डिफिकल्ट होगा. तो हम लोगों का आर्ग्यूमेंट ये था इस रूलिंग में कि वी शुड कैलकुलेट दिस कंपोनेंट ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट शीट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. भी गवर्नमेंट जो कॉस्ट शीट प्रोवाइड की है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट जब ये सप्लाई ले रही है हम लोग से, उस वक्त उसको मालूम था कि क्या फैक्ट्स एंड फिगर है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने अपने को एक कॉस्ट शीट बना के दी है, इसमें मटेरियल इतना यूज करना है और ब्रांड और रिफ्रैक्शन का इतना वैल्यू होगा. तो हमने ये आर्गुमेंट किया भाई आप उसके बेसिस पे परसेंटेज निकालो. एंड द एडवांस रूलिंग बेंच, ऑनरेबल एडवांस रूलिंग बेंच अग्रीड टू आवर कंटेंशन, और उन्होंने भी यही रूलिंग दी है कि भाई आप जो परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, यू विल कैलकुलेट दैट परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट का जो सर्कुलर में जो रेट्स दी हुई है उसके बेसिस पे आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड whenever we are calculating percentage of material on the basis of the cost sheet provided by the government, it is coming less than 25% because it is coming around 23%. What components we are taking? We are taking value of materials, packing materials, and also fortification charges. भाई ये दोनों component जो कि पैकिंग मटेरियल 50 रुपीज है गवर्नमेंट की कॉस्ट शीट में, मतलब गवर्नमेंट अपने को मिलर को 50 रुपए दे रही है पैकिंग मटेरियल का और 10 रुपया दे रही है फोर्टिफिकेशन का, आई मीन टू एड सम वाइटामिन्स. टोटल 60 रुपीज दे रही है. भाई हमने ये भी आर्गुमेंट रखा भी गवर्नमेंट जो 60 रुपीज दे रही है इसमें पूरा मटेरियल थोड़ी होगा, कुछ तो सर्विस एलिमेंट भी होगी. और एडवांस रूलिंग बेंच ने भी ये बात मानी हमारी कि नहीं, डेफिनेटली इसमें कुछ प्रैक्टिकली
कुछ सर्विस एलिमेंट भी होगा, खाली मटेरियल थोड़ी होगा। पैकिंग का चार्जेस के लिए गवर्नमेंट हम लोग को 50 रुपए दे रही है, तो डेफिनेटली इसमें कुछ सर्विस एलिमेंट भी होगा। बट द एडवांस रूलिंग बेंच सेड प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है कि इसमें मटेरियल कितना, तो उन्होंने पूरा 60 रुपया पकड़ लिया कि नहीं, मैं पूरे 60 रुपए को पैकिंग मटेरियल मानता हूं। देन ऑल्सो if we calculate percentage of rupees 60 on the basis of total value of supply, it is coming less than 25%. It's coming around 23%. So it is less than 25%. And क्योंकि ये less than 25% है, तो it should be exempt. तो अब क्या हो गया, ये exempt हो गया। तो जो भी मिलर्स ये सप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो डेफिनेटली अब उनकी ये सप्लाई एग्जेम्प्ट है। बहुत लोग पहले टैक्सेस दे भी चुके हैं, और कुछ पास में 2 साल पहले कई सारे इस पे केसेस भी हुए थे, लमसम भी बहुत लोगों ने टैक्स दिया था। अब अपने को, आप लोग को ये सोचना है कि आगे उस टैक्स का क्या करना है, कैसे रिफंड क्लेम करना है। बट दिस इज अ वेरी गुड रूलिंग एंड इट्स अ लैंडमार्क रूलिंग, जो आगे कई सारे केसेस में हेल्प करेगा कि हाउ टू प्रोसीड फर्दर। और ये जो डिटेल रूलिंग दी है, इसमें बहुत अच्छे से सारे ऑर्डर्स में एक एक पॉइंट जो हम लोगों ने सबमिट किया था, और एक एक बातें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। एंड इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड दैट वी शुड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ पैकिंग मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट शीट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सो इट्स अ वेलकम रूलिंग। थैंक यू सो मच।